The topic that has been listed is reaffirming right to education in challenging times. Uh, I just want to say that for RTE, it has always been a challenging times. In fact, if all of you would remember that it is exactly 10 years ago in 2010, April, that the RTE became operational. And except for the initial 2 3 years, we know that RTE has never been something very welcome by the government as such. After the 3 years, it was initially it was the government was somewhat indifferent. In fact, we find that we all know that during the last 3 4 years, the government has been almost sort of against the RTE implementation in various ways. Many government documents have actually criticized RTE as responsible for achieving universal elementary education. I just want to say this to say, to remind ourselves that RTE has been passing through challenging times, but despite all these things, during the last few years, we had achieved something very important. That is, uh, almost all children, करीब सभी बच्चे स्कूल में दाखिल हुए हैं। करीब मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो बाहर हो सकते हैं और भी करीब करीब सभी बच्चे एनरोलमेंट में आए हैं और जनरली दे हैव बीन अटेंडिंग रेगुलरली आल्सो और ड्रॉप आउट रेट में भी कम हुई है। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आई है कि सभी बच्चे बाहर हैं स्कूल से। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरा दुनिया में सभी बच्चे बाहर हैं। अभी तो ठीक है, अभी बहुत लोग कुछ कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे एंगेज करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ये सभी चीज बात कर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अभी ये जो चल रहा है, दिस कोरोना वायरस प्रॉब्लम्स, let us assume that it will take another 4 5 months to settle down. I think we need to start thinking about what are we going to do when things become reasonably all right, and we say that the schools are going to open. Then how do we really, what would be the situation, what do we want to do at that time? If we look 4 or 5 months ahead and say suppose by December, January, things are all in reasonably good shape, and then we decide to reopen the school, what would be the situation? Number one, I feel that all that achievement that you have made of enrolling all children is going to be in serious trouble. There will be, my estimate is that the minimum of 5 to 8% children and probably around 20% children may not come to school. Why it may happen, the enrollment may fall by anywhere between 8 to 20%. When we say 8 to 20% is a very big number. जो 5% हम कहें, 5% तो ऑलरेडी 1 करोड़ हो जाएगा, और हम 20 करोड़ में हम 10% कहें तो इतना सारा बच्चे बाहर रहेंगे। तो हम क्या करना चाहिए अभी 5 6 महीने में? तो क्यों बाहर निकलेंगे वो भी हमें पता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम सभी देख रहे हैं कि पॉवर्टी बढ़ रहा है already, and poverty will be a very serious issue. There will be large number of people who will be incapable of sending their children to school, even if they want to send their children to school. And the government would say that if you are poor, government is also poor, and we may not be able to provide much for this. This is a very serious situation that we are going to reach. At the moment, we are only seeing the migrant laborers moving, but as was said, that बाद में 6 7 महीने के बाद तो और भी ज्यादा लोग होंगे ये ढूंढने वाले, जॉब ढूंढने वाले, लेकिन जॉब नहीं होगी। और दूसरी कारण ये है कि क्यों बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, काफी बच्चे, क्योंकि स्कूल अभी जो 6 7 महीने हम बंद रखेंगे, बाद में स्कूल तो ऐसी परिस्थिति में होगी कि वहां जाना मुश्किल हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति होगी। तो क्योंकि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होगा, काफी जगह में शिथिल हो जाएगी, स्कूल बिल्डिंग भी ठीक नहीं होगी, और कुछ ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है
कि ऑलरेडी बहुत गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अभी जो टीचर्स, ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टीचर्स, and in the next 8 to 10 months you will find that all those people who are retiring, there will be no replacement for them, no recruitment will happen. I suppose even on contractual basis, whether teacher will be recruited or not, the government will say we may not be able to recruit. So I have a feeling that when it reopens, at the moment we are not realizing we will have a huge crisis of a very large number of children whom we are not able to. I am saying this because I think for RTE, we have a huge task on hand that we need to really, from now on, start really mapping out where are all the children who are likely to really face this kind of problems, geographically locating them, socially locating them, then local preparations be made for ensuring that they are really brought back to school. ये भी हो सकता है कि स्कूल तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन स्कूल की जगह में दूसरा कुछ चलाना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। अभी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हमने आरटीई में सोचा है स्कूल की माध्यम से ही होगी, लेकिन ये भी हो सकती है कि काफी जगह में स्कूल खोल भी नहीं पाएंगे, स्कूल चला नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, तो हमें दूसरा रास्ता भी इसके लिए ढूंढना पड़ेगा काफी जगह में। ये पहली बात मैं बताना चाहता हूं। और दो चीज बताना चाहता हूं। जब ये ऐसी परिस्थिति होगी, सब जगह में ये स्कूलिंग का प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे मैंने कहा कि parents will not be able to send the children to school because of poverty. Government will also not be able to do. Government will say that we don't have enough resources to really do anything more than that. लेकिन एक बात जो हो रहा है, अभी हम पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन में चले हैं गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी, काफी स्टेट गवर्नमेंट्स स्कूल्स को इन द नेम ऑफ कंसोलिडेशन स्कूल्स को बंद कर रहे हैं और प्राइवेट एंटिटीज को हैंड ओवर कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि अच्छी तरह से कि इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मुझे लगता है कि जब ये कहेगी कि हमसे तो नहीं हो सकती है, हम तो प्राइवेट को इनवाइट करेंगे, प्राइवेट स्कूल चलाएंगे। इसकी मतलब ये है कि जो अभी इनइक्वालिटीज इतना है ऑलरेडी एजुकेशन में, और सभी को एक तरफ का एजुकेशन तो मिलता नहीं है, और 6-7 महीने के बाद तो और भी मुश्किल होगी, और भी इनइक्वालिटीज होगी। हम किस तरफ से इगलिटेरियन एक इक्विटेबल सिस्टम लागू करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे सामने, क्योंकि गवर्नमेंट तो प्राइवेट को ज्यादा बढ़ाएगी मेरे ख्याल से, और गवर्नमेंट खर्च करने और भी कम खर्च करेगी, जो ऑलरेडी कम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो टीचर्स की हम कह रहे थे, आज हम टीचर्स क्या करें? टीचर्स कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बात कर रही है। हम तो अभी कह रहे हैं कि शहरों में ये हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं, और कुछ बड़े बच्चे भी हैं इसमें द गवर्नमेंट स्कूल में भी, हम कह रहे हैं कि हम तो ऑनलाइन स्कूल चला रहे हैं। ऑनलाइन ऐसी है कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि जो वीडियो गेम जैसा, अभी ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा मन में आ जाएगा, 40 मिनट टीचर के साथ इंटरैक्ट कर दिया, आज की स्कूल पूरा हो गई, और 2 लेसन ऐसा ही देख लिया, पूरा हो गई। ये स्कूलिंग तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, जैसा वीडियो गेम में होती है, ऐसा बच्चों का भी ऐसा एक तरफ का भ्रम बन जाएगी इसमें, और पेरेंट्स भी ऐसा सोचेंगे कि हम ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली इन द होल प्रोसेस, एक टेक्नोलॉजी की माया जाल में फंसने वाले हैं। इसमें एजुकेशन नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, एक इल्यूजन ऑफ लर्निंग होने वाली है। तो हमें इसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को डीसोशलाइजेशन करने से लर्निंग नहीं होगी, ये तो सोशलाइजेशन से लर्निंग होती है, साथ में बैठने से लर्निंग होती है। किसने वापस लेकर आएंगे? ये किस तरफ से बच्चों को फिर से सोशलाइजेशन का रास्ता बताएंगे? क्योंकि जब ये 6-7 महीने में खुलेगी, तभी भी कहेंगे कि सोशल डिस्टेंस करो। बड़े बच्चों तो समझ लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों की कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे क्लास में?
एक स्कूल में आने के बाद तो ये नहीं कह सकते कि बाद में बात मत करो और बाद में बैठो नहीं, ये तो नहीं कर सकते है ना। तो किस तरफ से इनको वापस लाएंगे, एक बड़ा चैलेंज है। ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ए सोल्यूशन, ऑनलाइन लर्निंग कुड बी अ कंटिजेंसी मेजर। ये सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं है, हम देंगे, हम कहेंगे कि कनेक्टिविटी भी दे देंगे, इससे भी ये लर्निंग और एजुकेशन तो पूरा नहीं होने वाला है। what will happen when the government expands online learning and encourages would be that the technology companies will make more money। जैसा ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन तो ज्यादा हुआ है, और इसका और एक एडिशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी कंपनीज ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। और कुछ अभी तो हम जूम में जो कर रहे हैं कि सभी स्कूल तो जूम के ऊपर कर रहे हैं, जैसा हम भी बात कर रहे हैं जूम के ऊपर, ऐसा ही दूसरा भी और भी ऐप आ जाएंगे आपको, और 10 ऐप आ जाएंगे, वो कुछ कहेंगे, वो सभी अपने टेक्नोलॉजी से, प्राइवेट टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इनका प्रॉफिट बढ़ेगी। मुझे लगता नहीं है कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन पर से। वी नीड टू फाइंड न्यू मेथड्स। अभी जो स्कूल चल रही है, पता नहीं और 2 साल ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो किस तरफ से बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। आई होप in the days to come we sit together, we work out, number one, reaching out the poorest of the poor, who will be around 15 to 20% children who will be out of school, how to reach them, map out where they are and what kind of education, how we can really reach. That is the biggest challenge for the RTE forum and the NGOs who are part of the RTE forum. Then we should think in terms of, I'm not against using technology, but how not to get seduced by technology. How should we not really get into a trap in the technology? That is also something that we need to seriously think about. These are the few points that I thought I should share with you. Thank you very much. We can have more discussion later on. Thank you, Ambarish ji. Hello. Thank you, sir. Thank you for your enlightened speech. We will come again with the question in the question answer session. So now I will